Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed exercise 2 and 3 of Unit 14, Simple Present Tense of your English grammar book. And I'm sure all of you must have completed exercise 2 and 3 in your books. Now children, today I'm going to start with exercise 4 of unit 14, simple present tense. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 53. Children, please take out your English grammar books, turn to page 53, unit 14, simple present tense. Children, today I'll be starting with exercise 4, and that is we celebrate Independence Day every year. All of us celebrate Independence Day every year. We celebrate it in the school, isn't it? Now, describe how you celebrate it at school in simple present tense. Now, we need to describe how we celebrate Independence Day in school. Fine? हमें ये डिस्क्राइब करना है कि हम इंडिपेंडेंस डे स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं. Fine? So, this we have to write in simple present tense, and there's a word bank given in purple box. So we need to use the words given in the bank. I'll read out the words for you. The words are national festival, decorate with flags and buntings, principal hoists the flag, delivers a speech, children perform on stage, fancy dress show based on freedom fighters, patriotic songs, national anthems, salute the flag, feel proud of the country. So let's start a paragraph on how we celebrate Independence Day in school, and we are going to write this in simple present tense. So our first sentence will be Independence Day Independence I capital, Days D capital, is our national festival. right? नेशनल फेस्टिवल वर्ड बैंक में है, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में इसको ऐड कर दिया. So our first sentence is Independence Day is our national festival. Then we celebrate it in school every year. We celebrate it in school every year on 15th August. हम हर साल इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? We celebrate it in school every year on 15th August. Clear? Then we
decorate the school we decorate the school with flags and buntings. झंडे और बंटिंग्स. बंटिंग्स आपको पता है ना, ऐसे रस्सी में वो ऐसे ऐसे जो पतली पतली स्ट्रिप्स लगी होती हैं, उसको झालर जैसी होती है, उसको बांधते हैं सजाने के लिए, इसको बंटिंग्स बोलते हैं. So we decorate the school with flags and buntings. Then our principal's P will be capital. Our principal, children, please keep in mind, you are going to write principal's P in capital. So our principal hoist the flag. Our principal hoists the flag and delivers a speech. Principal flag hoist करते हैं and speech deliver करते हैं. We are using the words given in the bank. Then children, perform on stage and participate in fancy dress show based on freedom fighters. We listen to patriotic song. Patriotic song means देश भक्ति के गीत. We listen to patriotic songs. We all sing the national anthem and salute the flag. We feel proud of the country. So,
With this, we have finished the paragraph using the words from the word bank. Now you need to understand हमने कहाँ कहाँ पे कैसे simple present tense use किया है. Now, Independence Day is our national festival. Fine. We celebrate. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे we है, plural pronoun है, तो हमने celebrate verb है वो root form में यूज किया है. और ये कब होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है? सेलिब्रेट है, वो रूट फॉर्म में. क्यों रूट फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पे वी प्लूरल प्रोनाउन है. ठीक है. नाउ वी सेलिब्रेट इट इन स्कूल एवरी ईयर ऑन 15th August. नाउ द नेक्स्ट लाइन, वी डेकोरेट. अगेन वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने यहाँ पे डेकोरेट किस में लिखा है? रूट फॉर्म में लिखा है. द स्कूल विथ फ्लैग्स एंड बंटिंग. देन आर प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन में देखो, आर प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आप देखो हॉइस्ट, इसमें वर्ब में हमने एस लगा दिया है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो हमारे वर्ब में रूट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब. तो प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ एस लगाया. Hoist the flags and the next verb is again delivers. अब क्योंकि सब्जेक्ट आर प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने delivers में भी एस लगाया. अब नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन, चिल्ड्रन परफॉर्म ऑन स्टेज. अब यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम परफॉर्म, हम एज इट इज हमने रूट फॉर्म में लिखा है. चिल्ड्रन परफॉर्म ऑन स्टेज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे चिल्ड्रन है जो प्लूरल है. ठीक है. एंड पार्टिसिपेट, अब ये दूसरा वर्ब है, ये भी रूट फॉर्म में है. क्यों रूट फॉर्म में? बिकॉज सब्जेक्ट तो चिल्ड्रन ही है, तो जब एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हमारे रूट फॉर्म में होंगे. तो यहाँ परफॉर्म भी रूट फॉर्म में है और पार्टिसिपेट भी रूट फॉर्म में है. ठीक है. In fancy dress show based on freedom fighters. Now the next line. We listen to patriotic song. अब we again plural pronoun है, तो यहाँ पे listen root form में है. So we listen to patriotic songs. Then we all sing. Again we subject है, plural है, तो sing हमने root form में लिखा है. The national anthem and salute the flag. वी सब्जेक्ट है, इसलिए फिर सल्यूट किस में है? सल्यूट रूट फॉर्म में है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा वर्ब रूट फॉर्म में होगा. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ईएस डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग. तो यहाँ सल्यूट रूट फॉर्म में. देन लास्ट लाइन, वी फील प्राउड. वी फील क्यों रूट फॉर्म में है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन वी है. सो वी फील प्राउड ऑफ द कंट्री. आई होप अभी सबको वर्ब समझ में आए होंगे कि सब्जेक्ट के साथ में हमने रूट फॉर्म या वर्ब में एस ऐड किया. सो आई होप with this we have finished our exercise 4th. I'll read once again and then I'll erase. Independence Day is a national festival. We celebrate it in school every year on 15th August. We decorate the school with flags and buntings. Our principal hoists the flags and delivers a speech. Children perform on stage and participate in fancy dress show based on freedom fighters. We listen to patriotic songs. We all sing the national anthem and salute the flag. We feel proud of the country. Fine. I hope all of you have done. So now I'm going to erase this. Okay. Now, please turn the page. Page number 54. Now, children, we are going to learn how to frame negative sentences in simple present tense. Fine. Now, you need to know that in simple present tense,
when we frame negative sentences we use do not or does not. हम बेटा क्या यूज करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ये अभी हमको सीखना है, ठीक है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमको दो वर्ड्स याद रखने हैं, डज नॉट एंड डू नॉट. ठीक है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें क्या हो, नॉट हो. नेगेटिव सेंटेंसेस आर दी सेंटेंसेस विच हैव गॉट नॉट इन देम. और नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डज नॉट या डू नॉट लगा के फ्रेम करते हैं. अब नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड, हम डज नॉट कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो हम डज नॉट यूज करेंगे. क्या क्या, जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, है ना, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, हम डज नॉट यूज करेंगे. क्लियर. डज नॉट कब यूज करेंगे, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब. कब ही लिखेंगे, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब. Whereas जब हमारा सब्जेक्ट I हो, you हो, we हो, they हो या प्लूरल नाउन, फाइन, इनमें से कोई भी एक हमारा सब्जेक्ट हो तो हम डू नॉट यूज करेंगे. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्लस प्रेडिकेट. ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है. सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट में से एक, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर. प्लस हमेशा याद रखना नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो वर्ब है वो किस में रहता है बेटा, रूट फॉर्म में. कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में इस चीज को आप एकदम अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब है इट ऑलवेज रिमेन्स इन द रूट फॉर्म. कभी भी उसमें एस नहीं लगेगा, है ना. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस जो हम फ्रेम करना सीखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम डज नॉट लिखेंगे. लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है तो हम डू नॉट लिखेंगे. बट है ना, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट दोनों में से एक, वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. उसके बाद आएगा आपका रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो भी वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में ही रहेगा एंड द प्रेडिकेट. फाइन. नाउ आई गिव एन एग्जांपल. My friend does not cook Chinese food. One example is this, and the other example is my friends do not cook Chinese food. ये देखो मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है. अब फर्स्ट ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि दोनों में नॉट है.
अब फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड है। अब माय फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है इसके बाद? डज नॉट। ठीक है, आपका वर्ब है वो किस में है? रूट फॉर्म में है, और चाइनीज फूड प्रेडिकेट है। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस में देखो, माय फ्रेंड्स, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल नाउन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस, इफ द सब्जेक्ट इज व्हाट? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हमने डू नॉट यूज किया है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द प्रेडिकेट। क्लियर? सो अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल बी explaining some more examples of negative sentences, and then I'll be starting the exercise based on negative sentence in my next video. Till then, all of you do learn and revise the taught exercises. That's all for today. Thank you, children. Have a good day ahead.